Now we will do the exercise part of chapter skeleton, locomotion and movement. तो इसमें सबसे पहले हम very short type questions करेंगे. तो सबसे पहले देखेंगे one word, skeleton of shoulder region, appendicular skeleton. B, joint between head of humerus and socket of shoulder bone, ball and socket joint. Third, muscle bundle that brings the arm closer to the body, biceps muscles. D, tissue that attaches muscles to the bones, tendons. E, the girdle that articulates with the sacrum region, pelvic girdle. Then second, fill in the blanks. A, the movable joint present at our elbow is called a hinge joint. B, the bones that forms a box around the brain constitute the cranium. C, the ribs that are not attached directly to the sternum are called false ribs. D, the cavity in the hip girdle that articulates with the head of femur is called acetabulum cavity. Then E, cartilaginous disc between adjacent vertebrae is called intervertebral disc. F, thoracic basket protects lungs and heart. Here again I have written this very clearly ताकि आपको सारी स्पेलिंग्स क्लियरली दिखें. तो ये वन वर्ड का है, अपेंडिकुलर स्केलेटन. बी, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. सी, बाइसेप्स मसल्स. डी, टेंडेंस. ई, पेल्विक गर्डल. फिल इन द ब्लैंक्स में देखेंगे. फर्स्ट है हिंज जॉइंट, सेकंड क्रेनियम, थर्ड फॉल्स. डी, एसिटाबुलम. ई, इंटरवर्टिब्रल. एंड एफ, लंग्स एंड हार्ट. And third is true and false. Number 1, a total number of skull bone is 30. False. B, synovial joints are immovable joints. False. C, pelvic girdle supports arm. False. D, flexure muscles on contraction makes the leg move away from the body. False. E, ribs help in breathing movement. True. F, hinge joint is present between ankle bones. False. Then comes fourth, match the column. Column A, column B. Number 1, tarsals, ankle. Ribs, chest. Pelvis, hip. Carpals, wrist. Femur, thigh. Now comes B part, यानी कि short answer type question में सबसे पहले हम second part देखेंगे. Which of the following are correct examples of each of joint name? Number 1, hinge joint, correct है, knee and elbow. B, ball and socket joint, hip joint, shoulder joint, correct है. C, gliding and sliding joint, joints between vertebrae, ये wrong है. D, pivot joint, joint between the atlas and vertebrae, this is correct. Then next we'll see D, multiple choice question. Number 1, ribs are attached to sternum. Ligaments connects bone to bone. Third, which one of the following is not a skull bone? Atlas. Fourth, biceps muscles are flexure. Fifth, thumb joint is a saddle joint. Third point we'll see answers in brief. Number 1, what are various parts of axial skeleton? तो यहाँ पे हम आंसर से लिखेंगे the various parts of axial skeleton are. उसके बाद हम ओपन करेंगे पेज नंबर 131. पेज नंबर 131 पे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है ना पार्ट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन. इसमें आप देखेंगे एक्सियल स्केलेटन लिखा हुआ है, तो आप उन्हें आर तक वहां लिख लिया. आर के आगे आप लिखेंगे स्कल, वर्टिब्रल कॉलम एंड थोरेक्स. सिर्फ इतना ही आपको आंसर नंबर 1 में लिखना है. ठीक है. These diagrams also you have to draw. ये डायग्राम आपको बनाना है 12.1 ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम. ये डायग्राम आपको बनाना है और ये ह्यूमन स्कल का साइड व्यू, ये डायग्राम भी आपको कंप्लीट डायग्राम ये दोनों बनाने हैं और लेवलिंग के साथ ये डायग्राम आपको बनाने हैं. ठीक है. तो ये डायग्राम आप कहीं भी बना सकते हैं, किसी भी पेज पे बना सकते हैं, बट यू हैव टू ड्रॉ दीज डायग्राम्स. देन क्वेश्चन नंबर 2 और बी, व्हाई इज बैकबोन फॉर्म्ड ऑफ मेनी रिंग लाइक बोनी पीसेस? ये आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 132 यानी 132 पे मिलेगा. तो यहाँ पे हम देखेंगे पेज नंबर 132 पे आपको हेडिंग मिलेगी वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन. तो यहाँ पे आप देखेंगे सेकेंड लाइन से आपको दिया हुआ है टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द बैक द बैकबोन इज फॉर्म्ड ऑफ 33 स्मॉल रिंग लाइक बोनी पीसेस कॉल्ड वर्टिब्री. यहाँ तक आपको लिखना है. ठीक है, वर्टिब्री तक लिखेंगे. तो दिस इज योर आंसर नंबर 3B. देन सी पार्ट, नेम द बोन्स दैट फॉर्म pelvic girdle. तो इसको आप यहीं से लिखेंगे द बोन्स दैट फॉर्म pelvic girdle आर
इलियम, ILIUM, इस्चियम, ISCHIUM एंड प्यूबिस। ठीक है, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। यहाँ पे इसकी स्पेलिंग है वो ILI है। ठीक है, डोंट सी दिस वन, ILIUM, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। This is the way you have to write this answer. The bones that form pelvis girdle are ilium, ischium and pubis. D part, give importance of joints. ये आंसर आपको पेज नंबर 136 पे मिलेगा। सो दिस इज पेज नंबर 136। यहाँ पे जॉइंट्स हेडिंग दिया हुआ है, इसी में आप देखेंगे सेकेंड लाइन से लिखेंगे द मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी और इट्स पार्ट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ जॉइंट्स। तो इंपॉर्टेंस में आपको सिर्फ इतना लिखना है और इसके साथ आपको डायग्राम भी ड्रॉ करना है। तो दिस इज फिगर नंबर 12.16 जो कि आपका पेज नंबर 137 पे आपको मिलेगा। दिस इज पेज नंबर 137। ठीक है, तो इसमें जितने भी जॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, बॉल एंड सॉकेट, हिंज जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, सैडल जॉइंट, ये सारे आपको बनाने हैं। ठीक है, इसमें से एक भी आप स्किप नहीं करेंगे। ABCDE सारे बनाने हैं और सभी में आपको अंडर ये जितना भी हेडिंग लिखा हुआ है, लेवलिंग दिया हुआ है, सब आपको लिखना है। राइट, नेक्स्ट सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में नंबर 1 देखेंगे, गिव फंक्शंस ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, जो आपको पेज नंबर 130 पे मिलेगा। सो दिस इज पेज नंबर 130 जो कि आपके चैप्टर का जस्ट स्टार्टिंग वाला पेज है। इसमें आप देखेंगे फंक्शंस ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, तो आप इसको यहीं से लिखना स्टार्ट करेंगे। द मेन फंक्शंस ऑफ द स्केलेटल सिस्टम आर, यहाँ से लेके आपको पूरा यहाँ तक लिखना है। ठीक है, पूरे सारा पॉइंट्स लिखना है और जितने भी पॉइंट्स दिए सारे पॉइंट्स आप लिखेंगे। दिस इज योर लॉन्ग आंसर नंबर 1। सेकेंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ साइनोवियल जॉइंट, ये आपको पेज नंबर 136 137 पे मिलेगा। सो यहाँ पे आप देखेंगे पेज नंबर 136 पे स्ट्रक्चर ऑफ अ साइनोवियल जॉइंट, तो ये आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है और इसके साथ में ये फिगर भी आपको ड्रॉ करना है विद कंप्लीट लेवलिंग। और इसका अदर पार्ट आपको पेज नंबर 137 पे मिलेगा। ये पेज नंबर 137 है और इसमें आपका ये फर्स्ट पैराग्राफ पूरा यहाँ तक साइनोवियल फ्लूइड तक आपको लिखना है। ठीक है, तो 136 पे एक पैराग्राफ है, फिगर है, और 137 पे एक पैराग्राफ है। ये पूरा इंक्लूड करके आपको आंसर नंबर 2 लिखना है लॉन्ग का। आंसर नंबर 3, नेम द रीजन्स ऑफ वर्टिबल कॉलम एंड द नंबर ऑफ बोन्स फाउंड इन ईच रीजन, ये आंसर आपको पेज नंबर 132 133 पे मिलेगा। दिस इज पेज नंबर 132। यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंट रीजन्स ऑफ वर्टिबल कॉलम, जो बिल्कुल लास्ट है। ठीक है, तो इसमें आपको ये सारे रीजन्स अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ वर्टिब्रेट जो दिए हैं वो भी लिखना है। तो ये पूरे पॉइंट्स आपको लिखने हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे रीजन्स दिए हुए हैं, सर्विकल रीजन, थोरेसिक रीजन, लंबार रीजन, उसके बाद में आपको इसकी नंबर ऑफ वर्टिब्रेट भी लिखनी है। ठीक है, तो ये लिखेंगे और इसके साथ पेज नंबर 133 पे इसके आगे के रीजन्स लिखे हुए हैं। तो ये नेक्स्ट पेज पे आ गया 133, इसको आपको यहाँ तक लिखना है। ठीक है, ये दिस इज गिवन अप टू द कॉर्डल रीजन। ठीक है, तो ये यहाँ तक आप लिखेंगे, यहाँ तक C3। ठीक है, सैक्रल रीजन देन कॉर्डल रीजन, यहाँ तक आपको लिखना है। अलॉन्ग विद दिस आपको 12.4 ये वर्टिबल कॉलम का डायग्राम बनाना है। इसी तरह से आपको रीजन में डिवाइड करके जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ड्रॉ किया हुआ है, वैसे ही आपको कॉपी में एज इट इज ड्रॉ करना है। देन क्वेश्चन नंबर 4, गिव फंक्शंस ऑफ वर्टिबल कॉलम, जो कि आपको पेज नंबर 133 पे मिलेगा। तो दिस इज पेज नंबर 133। यहाँ पे हेडिंग दिया हुआ है फंक्शंस ऑफ वर्टिबल कॉलम, ये पूरा आपको पैराग्राफ यहाँ तक लिखना है। लास्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब हाउ मसल्स फंक्शन व्हेन यू मूव योर आर्म्स, ये आपको पेज नंबर 139 पे आंसर मिलेगा। दिस इज पेज नंबर 139 और यहाँ पे देखेंगे फंक्शनिंग ऑफ मसल्स। इसमें आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये दोनों पॉइंट्स आपको लिखने हैं, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, और इसके साथ आपको ये डायग्राम भी बनाना है। दैट इज द 12.17 अटैचमेंट ऑफ ट्राइसेप्स एंड बाइसेप्स मसल्स इन दी फोर लिम्ब। तो ये पूरा डायग्राम भी आपको इस आंसर के साथ में ड्रॉ करना है। आपको 2 डायग्राम्स और बनाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बी पार्ट बनाना है, जिसमें आपको पेल्विक गर्डल का डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम आपको बनाना है। दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर 135। देन आपको पेक्टोरल गर्डल का भी डायग्राम बनाना है 12.18, जो आपको पेज नंबर 134 पे मिलेगा।